Hello students, I am Ajay Bansal, taking mathematics from the last 25 years. This is my third video on the chapter continuity and differentiability. And I am taking some important questions of R.D. Sharma in this video. आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास. क्वेश्चन नंबर 8. determine the value of a, b and c for which the function fx is equal to sine of a plus 1 x plus sin x divided by x for x less than 0. C for x equal to 0. X plus bx square square root of this minus square root of x upon bx की power 3 by 2 and it is 4x greater than 0 is continuous at x equal to 0 is continuous at x equal to 0. ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया आपसे ये फंक्शन डिफाइन किया गया आपको एक fx इक्वल टू इसके फॉर x का वैल्यू 0 से कम है तो fx का वैल्यू c लीजिए, 4x इक्वल टू 0 और fx बराबर इसके होगा 4x greater than 0. Find the values of a, b and c if the function is continuous at x equal to 0. Okay. आप लोग जानते हैं अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ लिमिट that is limit x tends to 0 fx will be equal to value of the function at the point. ये बात हम जानते हैं. हमें कहा गया है कि ये फंक्शन x equal to 0 पर कंटिन्यूस है. It implies this limit is equal to f0. It means this limit exists और एक लिमिट एग्जिस्ट करती है कब? जब उस पॉइंट पर LHL RHL दोनों इक्वल हो. Since this limit x tends to 0 fx exists, it implies LHL at x equal to 0 and RHL at x equal to 0 both are equal, and thus we can write left hand limit at the point x equal to 0 minus fx is equal to right hand limit at the point x equal to 0 plus fx and both of them are equal to f0. f0 के अंदर x की वैल्यू exactly 0 है और अगर x की वैल्यू exact 0 है then we can see fx is equal to c and thus the value of f0 is c. We write here c. This minus sign indicates कि आप निकाल रहे हैं LHL at the point x equal to 0. We write limit x tends to 0 माइनस का मतलब x का वैल्यू 0 से स्लाइटली स्मॉल है और अगर x का वैल्यू 0 से है कम तो फिर fx आपको लेना है इसके बराबर. तो इस fx की जगह आप लिखेंगे इसको that is sin a plus 1 into x plus sin x divided by x is equal to by x is equal to limit x tends to 0 plus means x का वैल्यू
0 से स्लाइटली मोर है अगर x का वैल्यू तो fx इक्वल किसके, इसके 10। फॉर दिस fx वी राइट x प्लस bx स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस अंडर रूट x डिवाइडेड बाई bx की पावर 3/2 and both of them are equal to c. Limit x tends to 0, हम इसको अलग कर लेते हैं, sin a प्लस 1 इंटू x, x इसके नीचे किया अलग और प्लस sin x डिवाइडेड बाई x ये हमने किया अलग। हम पहले निकाल रहे हैं दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 LHL at x equal to 0। हम पहले निकाल रहे हैं, सिर्फ इस लिमिट को निकाल रहे हैं। आगे देखिए क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू x, और इसकी लिमिट को 1 बनाने के लिए वी नो साइन के साथ में जो एंगल यहाँ पर होता है वही डिनोमिनेटर में चाहिए आपको, तो thus इसकी लिमिट को 1 बनाने के लिए हमने नीचे a प्लस 1 से किया डिवाइड, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा फिर आपको a प्लस 1 से, और ये प्लस साइन x अपॉन x। अब ये लिमिट तो हमारी हो गई 1 के इक्वल, ये लिमिट भी हमारी हो गई 1 के बराबर, एंड thus इट इज इक्वल टू a प्लस 1 और ये प्लस इसका वैल्यू हो गया 1, इट इज इक्वल टू a प्लस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 we have find out and it is equal to a plus 2. Let us find RHL at the point x equal to 0. Limit x tends to 0 x plus bx square square root minus under root x divided by b x raised to the power 3/2. This will be equal to limit x tends to 0. मैंने यहां से x कॉमन निकाला तो we get 1 plus bx square root of this minus square root of x divided by bx raised to the power 3/2. This is equal to limit x tends to 0, रूट x इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है कॉमन, एंड वी गेट 1 प्लस bx स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई b x raised to the power 3/2. This will be equal to limit x tends to 0 1 plus bx square root minus 1 divided by b root x, और यहाँ पर है x की पावर 3/2, 3/2 में से गया हाफ, we get only x, root x upon b upon x की पावर 3/2, this will be equal to x. On rationalizing this limit 1 plus bx square root plus 1, इसी से multiply and divide 1 plus bx square root plus 1. This will be equal to limit x tends to 0 a minus b a plus b is equal to a square minus b square 1 plus bx square से cancel square root minus b square upon bx 1 plus bx square root plus 1 से कैंसिल ये हुआ 1 और bx से कैंसिल हो गया ये bx। This is equal to limit x tends to 0 1 upon 1 plus bx square root plus 1. Put the value of x here, we get x का वैल्यू कितना है 0,
b into 0 0, 1 plus 0 1, 1 plus 1 2, it is equal to 1 upon। ये राइट की लिमिट निकाल ली हमने एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। एक बार फिर से यहाँ पर आ देते थोड़ा। इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी a प्लस 2, इसकी वैल्यू हमने भी निकाली है, हाफ आई है, एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू c। तो thus put all these values here, we get इसका वैल्यू है a प्लस 1, a प्लस 2 इज इक्वल टू, और ये लिमिट हमारी है ये हाफ, एंड इट इज इक्वल टू c। तो thus we can write c equal to half and a plus 2 equal to half. Thus a is equal to 2 minus half minus 2 plus half, it is equal to minus 3 by 2. What about b? It means b can take any value but not equal to 0, because अगर b का वैल्यू 0 हो गया तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो b कैन टेक एनी वैल्यू, b कैन टेक any real value except 0, except 0। ये हमारा आंसर आ गया। 10 a हमने निकाल लिया, c हमने निकाल लिया, और b क्या है? b कैन टेक any real value except 0। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर b का वैल्यू 0 हो गया तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। any number upon 0 does not exist, so b can take any value but not 0। okay, one more question। Question number 9, let fx is equal to one minus let fx is equal to 1 minus sin cube x divided by 3 cos square x if x less than pi by 2, it is equal to a if x equal to pi by 2, and it is b into 1 minus sin x divided by pi minus 2x whole square if x greater than pi by 2, if fx is continuous, if fx is continuous at the point x equal to pi upon 2, find the values of a and b। फंक्शन डिफाइन किया गया हमें, fx इक्वल टू इसके लेना है, if x का वैल्यू है पाई बाय 2 से कम, fx इज इक्वल टू a हो जाएगा अगर x का वैल्यू पाई बाय 2 है, और fx इक्वल टू इसकी होगा if x is greater than pi by 2। We are given that the function fx is continuous at the point x equal to pi by 2, and we have to find the values of a and b। Okay, let us see। Since we are given this function fx is continuous at the point x equal to pi by 2, and we know that अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब यही होता है वैल्यू ऑफ लिमिट एट दैट पॉइंट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 fx and value of fx at pi by 2, that is f pi by 2 both are equal। अगर फंक्शन किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इट इंप्लाइज वैल्यू ऑफ लिमिट
and value of a function both are equal at that point. चलिए, it means this limit exists, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है कब? जब उस पॉइंट पर LHR है चलिए इक्वल हो, तो इट मींस x इक्वल टू पाई बाय 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर सेम, देयरफॉर वी राइट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाय 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाय 2 and both limits are equal to f पाई बाय 2। x का वैल्यू कितना है पर पाई बाय 2, जब x का वैल्यू एग्जैक्ट पाई बाय 2 है तो fx इक्वल टू a के है, तो thus both limits are equal and each limit is equal to a। इन लिमिट को निकाल रहे हैं, अलग निकाल रहे हैं, मैं पहले इस लिमिट को निकालूंगा फिर इसको निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट at x equal to pi by 2, it is denoted by limit x tends to pi by 2, और ये दिखाने के लिए आप निकाल रहे हो LHL, एक माइनस का साइन लगा देते हैं, और fx ये बराबर हुआ लिमिट x tends to pi by 2। माइनस का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू pi by 2 से स्लाइटली स्मॉल, और अगर x का वैल्यू पाई बाय 2 से स्मॉल है देन fx इक्वल इसके, तो लिखिएगा fx की जगह पर भी राइट 1 माइनस sin qx डिवाइडेड बाय 3 cos kx। अब ये लिमिट सॉल्व करनी है आपको, देखिएगा मैं अगर सपोज x का वैल्यू पाई बाय 2 अभी से डाल दूं, नीचे 0 बनेगा ऊपर भी 0 बनेगा, मतलब फॉर्म आपकी कौन सी बनेगी 0.0 वाली। बट वी नो दैट इस लिमिट की तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, देखते कैसे निकालते हैं इसको फाइनाइट वैल्यू को। आप एक चीज बताइएगा मुझे, ये आपका बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। आप इसके कर सकते हैं दो फैक्टर्स, तो मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 ए क्यू माइनस बी क्यू, दो फैक्टर्स करेंगे a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b, इट इज sin x डिवाइडेड बाय 3 cos square x, it is equal to 1 minus sin square x. This is equal to limit x tends to pi by 2, 1 minus sin x into 1 plus sin square x plus sin x divided by 3, दो फैक्टर्स बनेंगे इसके a square minus b square, it has two factors a minus b into a plus b। दोनों कैंसिल आउट, ऊपर 0 बन रहा था इसकी वजह से, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था इसकी वजह से, वो कट चुके हैं दोनों, तो अब ना तो 0 यहां बनेगा डिनोमिनेटर में और ना 0 बनेगा वहां पर, तो बस हम डाल देते हैं कि इसी स्टेप पर x का वैल्यू पाई बाय 2 लिखिएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस sin पाई बाय 2 एंड sin पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस sin पाई बाय 2 1 3 into 1 plus 1, this will be 3 upon 3 into 2, it is equal to half। लेफ्ट लिमिट हमारी आ चुकी है, and now we find right hand limit at the point x equal to pi by 2। we write right hand limit at x equal to pi by 2। right hand limit is denoted by the symbol x tends to pi by 2 और यहाँ लगाते हैं साइन प्लस।
प्लस का साइन इंडिकेट करता है कि आप निकाल रहे हैं x बराबर पाई बाय 2 पर राइट हैंड लिमिट और x का वैल्यू पाई बाय 2 से स्लाइटली मोर है, और अगर x का वैल्यू पाई बाय 2 से है ज्यादा तो फिर fx आपका इक्वल इसके है, तो फिर fx की जगह लिखेंगे इसको, या एक मिनट को पहले fx और अगले स्टेप में लिखे आप ये चीज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस का मतलब क्या होता है x के वैल्यू पाई बाय 2 से कुछ अधिक है, तो फिर fx आपको लेना है ये वाला b into 1 minus sin x divided by pi minus 2x whole square। ये लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसके अंदर हम, और वो सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे इसके अंदर put denominator, put pi minus 2x is equal to say t। आप इसको t मानिएगा, तो फिर आपको निकालनी है x की वैल्यू, तो यहां से निकालिए x का वैल्यू, 2x यहां से इक्वल टू आ गया pi माइनस t, तो 10x आपका इक्वल टू हो गया pi बाय 2 माइनस t बाय 2। अच्छा, ये सब आप ये लिमिट आपके पास थी इन टर्म्स ऑफ x, और लिमिट चेंज करने जा रहे हो इन टर्म्स ऑफ t। ये लिमिट तो लेकिन x के लिए थी, तो अब लिमिट आपको निकालनी होगी अकॉर्डिंग टू t। लिखेगा इफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 देन t टेंड्स टू क्या होगा, t आप यहां से निकालिए, t बराबर इसके है, और इसमें डाल दीजिएगा x की वैल्यू पाई बाय 2। अब x की जगह लिखेंगे पाई बाय 2, 2 से कटेगा 2, पाई माइनस पाई 0, मींस t टेंड्स टू 0 आएगा। अगर t टेंड्स टू आ गया 0 तो 10, दिस लिमिट बिकम्स इन टर्म्स ऑफ t लिमिट, अगर x टेंड्स टू पाई बाय 2 है तो t टेंड्स टू 0 है आपका b into 1 minus sin x, और x इक्वल किसकी है, x इक्वल है पाई बाय 2 माइनस t बाय 2 अपॉन, इसको आपने माना है t, तो t स्क्वायर हो गया आपका ये। नाउ दिस विल बी इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 b into 1 माइनस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos t बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। मैंने इसको लिखा लिमिट t टेंड्स टू 0 b, and we know that 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2, 2 sin square, एंगल का हाफ लिया जाएगा, t by 2 का हाफ t by 4, और नीचे t स्क्वायर। अच्छा, इस लिमिट को मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट t टेंड्स टू 0, ये 2 और ये b, और मैंने लिखा sin t by 4 इंटू साइन टी बाई 4, स्क्वायर को मैंने इस तरीके से लिख दिया है अपॉन टी स्क्वायर, एक टी यहां लगा दिया और एक टी लगा दिया मैंने इधर, और इसकी लिमिट को एक बनाने के लिए 4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, सेम हियर 4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो ये लिमिट अब आपकी हो चुकी है 1, ये लिमिट भी आपकी हो गई है 1, 2 टू 4, ऊपर बचा b और नीचे 2 4 जा 8, b अपॉन 8 आपके पास आ गया RHL, और आपने कहा था पीछे भी LHL बराबर है RHL एंड ईच ऑफ देम इज इक्वल टू था आपका a के बराबर था, ईच ऑफ देम इक्वल टू था e के। दादी सारी वैल्यूज इसके अंदर, लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी वैल्यू हमने निकाली यहाँ पर, ये हाफ, LHL हमारा हाफ आया था, लिखिए हाफ, RHL हमारा अभी आपका आया है b अपॉन 8 एंड इट इज इक्वल टू a। तो बस आ गया आपके पास a इक्वल टू हाफ हो गया एंड b अपॉन 8 इक्वल टू 1/2 एंड thus it implies कि b इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू हाफ आ गया और
बी का वैल्यू हम ये हमारा हो गया 4। Let us try one more question. Question number 10. If fx is equal to x cube plus x square minus 16x upon x minus 2 whole square, if x not equal to 2, k if x equal to 2 is continuous at x equal to 0. At x equal to 0, find the value of k. आपको दिया है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। निकालते हैं। अगर फंक्शन एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इट इंप्लाइज उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ लिमिट एट x इक्वल टू 0 is equal to value of f at x equal to 0. It means we have limit x tends to 0 fx must be equal to value of f0. फंक्शन में आपका 2 पर कंटिन्यूअस है, सॉरी सही कर लीजिए, इट इज x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तो यानी ये f2 होगा और ये x टेंड्स टू 2 और ये f2 की वैल्यू कितनी दी हुई आपको की, तो इसका मतलब ये हो गया जो वैल्यू इस लिमिट की आएगी ना वही वैल्यू आपकी हो जाएगी k की। तो खाली बस इसके अंदर आपको सिर्फ ये निकालना बाकी रह गया है, हम निकाल रहे हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। लेट अस सी लिमिट x टेंड्स टू 2 fx it is equal to limit x tends to 2 fx x tends to 2 का मतलब क्या है कि x is not exactly 2, अगर x is not exactly 2 तो फिर fx आपका इक्वल इसके है, तो fx की जगह आप लिखिए इसको x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैं अगर x का वैल्यू 2 अभी से डाल दूं इसके अंदर तो देखिएगा 2 माइनस 2 0, और ऊपर भी आप देख लीजिए सॉल्व करके 2 की पावर 3 8, 8 और 4 12, 12 और 20 32 और 32 से 32 से 0, यस ऊपर भी 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा, 0/0 की फॉर्म आ गई। लेकिन इसकी कोई ना कोई तो फाइनाइट वैल्यू आएगी, देखिए कैसे निकालेंगे। फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने सीखा था कि अगर एक पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 2 लगाने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है, देन इट इंप्लाइज कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के अंदर जब आप लगा रहे हो x की जगह पर 2 तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है 0। इट इंप्लाइज कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो थस इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो हो गया x माइनस 2। दूसरा फैक्टर क्या आएगा, आपको चाहिए क्या चीज, x की पावर 3 चाहिए, और x की पावर 3 लेकर आने के लिए आपको x को मल्टीप्लाई देना होगा x स्क्वायर से, तो ये x स्क्वायर आ गया। यहाँ प्लस 20 चाहिए, प्लस 20 आपको मिलेगा तब जब इस -2 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे। बस एक टर्म आपकी रह गई बीच में x वाली टर्म, वो क्या आएगी वो आपको देखना पड़ेगा, माना वो टर्म आपका है kx, तो आपको माना वो cx है, तो आपको निकालनी यहां से c की वैल्यू। c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से देखिएगा, आप यहां से निकालिए x स्क्वायर का
क्या कोफिशिएंट है, और यहाँ से भी निकालिए एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, और दोनों को कीजिए इक्वल। अगर मैं यहाँ से निकालूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर कब कब आएगा, जब x मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपके पास आएगा सी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब इस -2 को आप करोगे इससे मल्टीप्लाई तो आएगा -2x स्क्वायर, यानी कि x को बाहर निकालूं कॉमन तो अंदर क्या मिलेगा c-2, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है c-2, और यहाँ कोफिशिएंट है 1 एंड thus c-2 मस्ट बी इक्वल टू 1। thus c का वैल्यू आपका 3 आ गया, तो x का यहाँ पर 3 कोफिशिएंट है 3 हो गया इसके फैक्टर्स, और नीचे x-2 का होल स्क्वायर, एक x-2 से कैंसिल x-2 and we get limit x tends to x square plus 3x minus 10 divided by x-2। मैं अगर x के वैल्यू 2 में से डाल दूं तो यहाँ 0 बनेगा नीचे, और ऊपर 4 और 2 4 और 6 10 10 माइनस 10 0, यस यहाँ भी 0 बन रहा है, यहाँ भी 0 बन रहा है, तो इसका मतलब फिर से फैक्टर्स कीजिए, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। आपने भी फिर दोबारा से देखा कि इस पॉलिनोमियल के अंदर जब आपने x की जगह रखा 2 तो इसकी वैल्यू बन जाती है 0। इट इंप्लाइज कि इसका एक फैक्टर x-2 होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, x इसका चाहिए तो x लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और यहाँ -10 चाहिए वो तब आएगा जब -2 को आप +5 से मल्टीप्लाई करोगे। हो गया इसके फैक्टर 2 फैक्टर्स, और नीचे x-2 से कैंसिल हो गया x-2, लगा दीजिए x का वैल्यू 2 + 5 7 आ गई हमारी, इस लिमिट की वैल्यू आ गई है 7, देयरफॉर k = 7। स्टूडेंट्स साथ में इतना कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन मैं आपके साथ लूंगा पार्ट नंबर 4 के अंदर, जब मैं बनाऊंगा इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 4। अब प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने ऑल फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके, आज इतना कर रहे हैं, गुड बाय।